Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fayaz Muhammad. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing Advanced Web Application Development course, and today is our lecture number 20. Let's see what we will cover in today's lecture. Learning objective of today's lecture are as follows. We will start from action method, then we will discuss action selector, action verb, action result, action filter, and another topic, Razor view engine, Razor syntax, view types, and discovery. In the end, we will also create a demo application describing the Razor syntax and strongly typed views, etc. You know very well we have covered following topics in our last lecture. These are the online resources that we have consulted for the creation of this lecture. Let's start. What is an action method? Before going to discuss action method, we recap what are controllers. As in our previous lecture, we discussed in very much detail what are controllers. Controls are just classes having a set of public methods, and these methods are called action methods. Action methods are used to handle the incoming HTTP requests. कंट्रोलर को जो भी रिक्वेस्ट HTTP मिल रही होंगी वो सारी की सारी एक्शन मेथड हैंडल करेगा. These action methods are invoked from the web via some URL to perform an action when you enter a particular URL in your browser address bar. For example, http localhost/product/index/3. अब ये आपने एंटर किया और उसके बाद आपने यू प्रेस्ड एंटर. व्हाट विल हैपन? रिक्वेस्ट लोकल होस्ट के पास जाएगी और लोकल होस्ट से द कंट्रोलर प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एंड द मेथड ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रोलर इंडेक्स will be used to handle this incoming request having an argument or parameter 3. What are the responsibilities of action? Action confirms the incoming request. Is it valid or not? Next, action executes the appropriate business logic corresponding to the incoming request and chooses the appropriate kind of response to return. These are the responsibilities of the action. Action methods are like any other normal methods with the following restrictions. Action method must be public and it cannot be private or protected. Action method cannot be overloaded, and action method cannot be a static method. And last is action method returns action result. Action result, this is the base class of all the result types. Action method doesn't generate a response directly but chooses what sort of response to send and prepare the data for it by calling appropriate service in the application model to handle request. For example, returning a view result does not generate any HTML at that point. It indicates which view template to use and the view model it will have access to. What does this mean? Simply, action method की responsibility में से क्या है कि ये चूज करता है कि कौन से मतलब हमने
रिस्पॉन्स यूजर को देना है और उसके लिए किस तरह का डाटा उसे चाहिए और वो उस डाटा को एक्सेस करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट सर्विस कॉल करेगा। अब जैसे कि यहाँ बताया, रिटर्निंग ए व्यू रिजल्ट डज नॉट जनरेट एनी HTML। ये जनरेशन ऑफ HTML इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द व्यू इंजन। वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करेंगे कि वो किस तरीके से उसको करेगा। व्यू रिजल्ट्स आर जनरेटेड या जनरेट्स एन HTML response using Razor View Engine and that is by default। मतलब जो HTML रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो रेजर ने जनरेट करना है या किसी व्यू इंजन ने जनरेट करना, और इन दिस केस रेजर इज द डिफॉल्ट व्यू इंजन। एक्शन सेलेक्टर, एक्शन सेलेक्टर्स आर एट्रीब्यूट दैट कैन बी अप्लाइड टू एक्शन मेथड। हमारे जो एक्शन मेथड है हम उन पे कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर देते हैं और दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प राउटिंग इंजन टू सेलेक्ट द करेक्ट एक्शन मेथड टू इन्वोक टू हैंडल अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए कौन सा एक्शन मेथड, विच ऑफ द एक्शन मेथड विल बी इन्वोक्ड, तो एक्शन सेलेक्टर हेल्प करता है राउटिंग इंजन की कि कौन सा, जैसे मैंने बताया कंट्रोलर इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एक्शन मेथड्स। तो उन एक्शन मेथड्स में से कौन सा एक्शन मेथड कॉल होना है, फिर एक्शन सेलेक्टर हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है? फॉलोइंग आर द एक्शन सेलेक्टर एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एक्शन नेम एंड इट अलाउज टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट एक्शन नेम देन द मेथड नेम। मतलब हम अभी देख लेंगे एग्जांपल में कि एक्शन सेलेक्टर में हम एक्शन नेम इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल मेथड नेम हम उसको किसी और नाम से भी कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली नो एक्शन, दिस इंडिकेट्स दैट ए पब्लिक मेथड ऑफ ए कंट्रोलर इज नॉट एन एक्शन मेथड and that cannot be invoked by URL but used for reusable operations in a controller. But in some situation we need to use a method for other methods and that method cannot be invoked, called by the user or by request of the user, and no action methods are used for the service of other action methods in a controller. Next is the action verb. Action verbs are used to select an action method based on HTTP request method. What kind of HTTP request the action method supports? For example, post, get, put, etc. अब एक्शन वर्ब्स किस तरह से हेल्प करते हैं, अब उसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्शन मेथड कैन नॉट ओवरलोड एज C# मेथड्स but action verbs helps to overload action methods। जैसे पहले बताया, action method cannot be overloaded, but if we need to overload any of the action method then we will use action verbs, and these action verbs are used to make a method to overload। Action verbs allow to define two different action methods with the same name। दो एक्शन मेथड का एक ही नाम हो जाएगा, but one corresponds to an HTTP get request and another responds to an HTTP post request। अब दोनों get request पे रिस्पॉन्स किस तरह दे सकते हैं, एक get पे दे रहा होगा और एक post पे दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल edit method, most of the time we use edit method to change the data of a model or a particular entity। One edit method responds to a get request and renders the edit form। जब उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक फॉर्म ले लेते हैं। The other method responds to the post request and updates the database। कमिंग लेक्चर में हम इसको यूज भी करेंगे। ASP.NET Framework supports different action verbs such as HTTP GET, HTTP POST, HTTP PUT, and in our starting lecture
when we discussed HTTP protocol, then we also discussed these verbs. If you don't apply any attributes, then it considers it a get request by default. अगर आप नहीं स्पेसिफाई कर रहे, कोई भी एक्शन वर्ब स्पेसिफाइड नहीं कर रहे एक्शन मेथड के लिए, then by default it is considered as get request. And what are their uses? The uses is as follows: get is used to retrieve the information from the server, and similarly post is used to create a new resource, and put is used to update an existing resource, delete is used to delete an existing resources. This is the uses of most common action methods. अब ये एग्जांपल एक्शन नेम की, दिस इज द controller and name of controller is student controller, and this is constructor of this student controller. Here this is the name of action method get by id, और उसको हम पैरामीटर we are passing id as int argument to this method, but we have applied the attribute action name find. And what is the purpose of find? In this example, action name find attribute is applied to get by id action method. Again, the name of actual name of action method is get by id, but here we applied action name find. और ये क्या करेगा? So now action name is find instead of get by id. अब when we call this, we can call this method by find, not by get by id. This action method will be invoked on HTTP localhost student find. ये argument 1 पास कर रहे हैं request instead of कि हम उसको ये पास करें student get by id. अब get by id की बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं? find. This is the purpose of action name selector. Next, what is action result? Action result is actually a data type, a class that is returned from a action method. अब आप action method को जब भी कॉल करेंगे कुछ ना कुछ इसमें रिटर्न करना है, तो action result क्या है? जो वो data type रिटर्न कर रहा है वो action result है, और चूंकि it is since it is returned by the action method, we also called it a return type. Action return becomes a return type when it is used with action method of a controller. Action result is an abstract base class of all result types which returns from action method and which implements iAction result. इस इंटरफेस को वो implement करता है, और ये एक abstract base class है, और इससे हम बहुत सारी further classes derive कर सकते हैं. Action result has many derived classes. Action method can return models to views. अभी हम देखेंगे कि action methods किस तरीके के मॉडल्स को रिटर्न करते हैं, व्यूज को या फाइल स्ट्रीम्स को या फाइल्स को, और रीडायरेक्ट टू अदर कंट्रोलर्स और व्हाटसोएवर इज नेसेसरी फॉर द टास्क एट हैंड. और यही वजह, यही आपको बताया ऑल द रिजल्ट टाइप्स. अब देखिए सम टाइम मॉडल्स रिटर्न कर रहा होगा, सम टाइम फाइल स्ट्रीम रिटर्न हो रही है, एंड सम टाइम किसी दूसरे कंट्रोलर को या दूसरे एक्शन मेथड दूसरे कंट्रोलर की तरफ हम रीडायरेक्ट करते हैं. एक्शन रिजल्ट टाइप इन द फॉलोइंग, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई एक्शन रिजल्ट. जब ये इंटरफेस कॉल किया जा रहा होगा तो ये पॉसिबल रिटर्न टाइप्स हैं. व्यू रिजल्ट, it is used most of the time. Redirect result, redirect to route result, file result, content result. Let's suppose we want to return string or any other content. Status code result के request successful हुई है नहीं हुई. Not found result, sometimes result are not available. HTTP unauthorized result, if someone is authorized or unauthorized. एक्शन रिजल्ट हेल्पर मेथड्स. अब ये देखें, एक्शन रिजल्ट्स हैव हेल्पर मेथड एंड दीज हेल्पर मेथड्स आर डिफाइंड इन द कंट्रोलर बेस्ड क्लास. एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट,
कि controllers are derived from the controller base class, and that controller base class provides lot of functions, lot of methods to perform different common tasks. यहाँ पे भी usually these methods name have the word result stripped away. For example, content name is used for content result and view is used for view result. अब ये किस तरह से करते हैं? Let's see in this snippet, code snippet here. This is the student controller and it is derived from this controller class, and this is the action method. Name of this action method is index, and it is returning a view, and this view is provided, this method is provided to this student controller action method by this controller base class, और ये view is defined in the base controller class, और वो फिर इसको हैंडल करता है कि किस तरह से उसने क्या रिटर्न करना है, वो भी हम देखेंगे कि व्यू कैसे जनरेट होगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स. कंट्रोलर, जैसे एज आई टोल्ड यू, base controller class contains different methods which automatically returns particular type of result and shown in the below table. These are the methods of the base controller class. ये methods हम generally action method में इन methods को call करते हैं. फिर वो methods देखें किससे, result class उससे क्या है, view result, or it is used to represent HTML and markup. Similarly, content, as I told you previously, response, इधर ये आप देख सकते हैं represent string literals. ये file method, अब ये क्या करे, represent the content of a file, और ये उनकी result classes हैं depending upon the situation. Similarly, we can also return या represent JavaScript by calling JavaScript method, JSON, JavaScripting object notation, and redirect to route partial views. These are the methods provided by base controller class to the derived controller, and action method uses any of these methods to return a result. Filters in ASP.NET Core, another important concept. There are various situations in real life we need to execute, we need to process some logic before calling, before using any of the action method or controller. Filters allow a code to be run before or after specific stages in the request processing pipeline. आपकी जो request कंट्रोलर को या एप्लीकेशन को मिलेगी, वो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन के किन स्टेजेस से गुजर रही है, तो उन स्टेजेस पे वी नीड टू एग्जीक्यूट सम कोड बिफोर ऑफ और आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्टेज, starting of the application, ending of the application, before calling a controller, after calling a controller, before calling an action method, after calling an action method. There are various situations. Filter is a custom class where you can write custom logic to execute before or after an action method execute. ये action method action filter भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे फिर किस तरीके से. Filters are applied to an action method or a controller or globally भी हो सकते हैं. Filters configured globally or per controller or per action based. Built-in filters handles tasks such as authorization and response caching, and custom filters can be created to handle cross-cutting concerns. And what are cross-cutting concerns? These include error handling throughout your application, caching, storing data, configurations, similarly authorization and logging. Filters are used to avoid duplicate code. They keep in mind the DRY principle. Don't repeat yourself. Next, filter types. ASP.NET
framework supports the following types of filter that is executed at a different stage in the filter pipeline. जो आपकी एग्जीक्यूशन की फिल्टर पाइपलाइन होगी, अब उसमें वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? नंबर 1 पे ऑथराइजेशन फिल्टर, दीज रन फर्स्ट, सबसे पहले ये रन एग्जीक्यूट होंगे उस पाइपलाइन में, रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर, and are used to determine whether the user is authorized for the request or not. If authorized, then your request will be fulfilled, otherwise request will not be fulfilled. Similarly, resource filters return after authorization. First of all, authorization filters are executed. After that, if there are resource filters, then these are executed after authorization. And these are the methods. On resource executing, runs code before the rest of the filter pipeline. Similarly, on resource executed, अब ये executing है और ये executed. See the difference. Runs code after the rest of the pipeline has completed. Similarly, action filters. Action filter run code immediately before and after an action method is called. Let's suppose you are going to call index action method. What you need to execute, what logic you can want, you want to perform before calling index method. And these action filter can change the arguments passed into an action. जैसे भी हम 1, 3 we are passing. Similarly, these action filters can change the result returned from the action. उससे जो result return हो रहा है. अब next में ये भी फर्दर फिल्टर टाइप्स हैं. ये किस तरह से अप्लाई? एक्सेप्शन फिल्टर्स आर अप्लाई ग्लोबल पॉलिसीज टू अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस. लेट्स सपोज देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन in your controller before executing any action method that occur before the response body has been written to. Similarly, result filter, these are the code that run immediately before and after the execution of action result, and these run only when the action method has executed successfully. First of all, action method successfully execute होगा, after that जो result produce हुआ and useful to modify a view result right before the view is rendered to the browser. जब तक वो ब्राउजर में रेंडर नहीं हो जाता उससे पहले आप ये इसको अप्लाई करते हैं. फॉर्मेटर के तौर पे यूजुअली यूज किए जा रहे थे. फिल्टर स्कोप, फॉलोइंग आर द फिल्टर स्कोप या डिफरेंट लेवल्स. दीज आर 3 डिफरेंट लेवल्स. पर्टिकुलर एक्शन एज एन एट्रीब्यूट, फिल्टर को हम किसी पर्टिकुलर एक्शन पे एट्रीब्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं. सिमिलरली, ऑल एक्शंस विद इन ए कंट्रोलर विद एट्रीब्यूट. कुछ फिल्टर्स ऐसे होंगे जो तमाम एक्शंस पर किसी भी कंट्रोलर पे अप्लाई किए जा सकते हैं. या वी कैन रजिस्टर ए फिल्टर ग्लोबली टू बी रन विद एवरी मॉडल व्यू कंट्रोलर एक्शन. दीज आर यूजुअली कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड इन स्टार्टअप. हम अपने स्टार्टअप क्लास में कुछ जो सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हैं यूजिंग सर्विसेज मेथड. अब ये ग्लोबली रजिस्टर हो जाते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन, और as I am telling you, to be run with every MVC action. What is a razor? अब next question आता है, मतलब this is the next part of our lecture. Web apps have ability to dynamically generate contents, and that's why these are called web apps. अगर ये dynamic content generate ना करें तो फिर वो static websites बन जाएंगी, static files की सूरत में होगा. तो वेब एप्स की जो एबिलिटी है, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ द कोर्स, टू डायनामिकली जनरेट कंटेंट्स. अब ये वेब एप्स डायनामिकली कंटेंट्स कैसे जनरेट कर रही हैं? तो व्यू इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एन HTML रिस्पॉन्स. अब हमने देखना ये HTML रिस्पॉन्स, एक तो तरीका ये है कि ऑलरेडी आपने स्टैटिक फाइल रखी हुई है और वेब सर्वर रिटर्न कर देता है, लेकिन हेयर वी यूज वेब इंजन, view engine, and that view engine is responsible for producing an HTML response. और किस तरह से ये कॉल होता है? when controller action methods invokes the view or partial view. देखिए ये view, अभी हमने पहले देखा ये मेथड
it is used to generate HTML response. A partial view, it is also used to generate HTML response. So whenever action method like view or partial views are called, it invokes view engine that produces the HTML response. अब ये फिर इन्वोक करेगा व्यू इंजन को और वो व्यू इंजन प्रोड्यूस करेगा HTML रिस्पॉन्स. जैसे हम कह रहे थे कि द जॉब ऑफ एक्शन मेथड इज टू चूज अ पर्टिकुलर मेथड, not to produce HTML response. The production of HTML response is the duty or responsibility of view engine. Razor View Engine, it is one of the supported and default view engine for the ASP.NET Core apps. Razor View Engine looks for Razor markup. In the next slide, we will check what are Razor markup. Of Razor markup को Razor View Engine looks for Razor markup in the view file and parses it and produces the HTML response by incorporating data into HTML. अब यहाँ पे देखें, already view file contains HTML and data. अब वो data view engine produce करेगा, incorporate करेगा. अब वो किसकी मदद से करेगा? With the help of Razor markup. Razor View Engine allows to write mix of HTML and server-side code using C# to perform logical tasks in the view page, like expression creation, conditional statement, loops, and variables in the view page. And in the first part of the course, in discussing C# language, we have discussed in very much details how we can create expression, we can use conditional statements, loops, and variables. Razor View Engine C# code create dynamic web contents, and this C# code create dynamic web content on the fly by executing on the server while a web page is written to the browser with the help of Razor View Engine. What is Razor syntax? Razor syntax, well, Razor is not a programming language. Razor syntax of Razor markup, that is syntax and keywords, C# and HTML to generate view. Razor markup ये तीन components कि उसका अपना एक syntax या उसके कुछ keywords हो सकते हैं और it will consist of C# and HTML to generate view. Razor syntax is a server-side markup language or syntax that allows HTML just like HTML hypertext markup language. This is not the programming language but markup language or syntax that allows to embed server-based code C# into web pages. हम उसको और insert C# code inside HTML markup. Very simple. कि हम अपने वेब पेजेस में C# कोड को HTML के साथ इंसर्ट करते हैं, एम्बेड करते हैं. And Razor syntax is based on the ASP.NET framework, the part of the .NET framework that is specifically designed for creating web application. That's why it makes it more efficient. And Razor syntax uses its own syntax and keywords to generate view. वो हम देखते हैं कौन से उसके keywords हैं. Files containing Razor generally have a .cshtml file extension. Razor expression can contain almost any C# statement, and that's why it is very hard, it becomes very difficult to decide where to use the logic of processing the data, and this makes difficulties for achieving the SOC, separation of concern philosophy advantages. For example, अब हमारे लिए मुश्किल ये पेश आती है कि अगर व्यू C# की हर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है तो क्यों ना हम कुछ कंप्यूटेशन व्यूज में परफॉर्म कर लें. अगर हम वो कंप्यूटेशन कंट्रोलर की बजाय व्यू में परफॉर्म कर रहे हैं
तो अल्टीमेटली इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। व्यू का जो पर्पज है टू डिस्प्ले द डाटा टू द यूजर, उसको अपना ये पर्पज फुलफिल करना चाहिए, ना कि उसको कंप्यूटेशन कहीं जरूरत पड़ती है स्लाइड तो वी कैन यूज and we can process it in the view, but it is recommended to avoid a lot of logic in views and your views will become difficult to maintain in future. Razor code किस तरह का? Razor syntax uses the add symbol to transition from HTML markup to the C# code. As I told, C# syntax consists of razor markup. Razor syntax consists of razor markup and C# code along with the HTML. अब हम difference कैसे करेंगे? Add symbol is used and this add symbol describe no this is C# code or razor markup syntax or keyword. As you know, HTML elements starts from left angular bracket. Add symbol is used to start single line expression, single statement block or multi statement block. With the help of add symbol हम एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं या फिर सिंगल स्टेटमेंट का ब्लॉक बना सकते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट ब्लॉक बना सकते हैं। कैसे करेंगे? There are two ways to achieve the transition from HTML to C#. Number one is using razor code expression and number second is using razor code blocks, and these code blocks are very similar just like C# code blocks. These expressions are evaluated by the razor view engine and returned to the response to produce HTML response. Razor code expressions. Razor code expression also start with add symbol and followed by C# code. The code expression can be either implicit or explicit. Implicit razor expression start with add followed by C# code. अभी हम example भी देखेंगे फिर ये clear हो जाएगा. Similarly, explicit razor expression start with add followed by parenthesis, balanced parenthesis. Left number of left parentheses must be equal to number of right parentheses. Any content within the parentheses is evaluated and rendered to the output. Various situation है जहाँ पे हम explicit use करेंगे, generally हम implicit razor expression use कर लेते हैं. Razor code block, these are similar to C# code block. These starts with add symbol followed by the curly braces. And razor code block can be created anywhere in the markup using add and the pair of curly braces. With the help of this, we can create razor code block. Razor code block can be used. हम क्यों यूज करते हैं? To manipulate a model, to declare a variable and set local properties on a view, etc. And these code block doesn't emit anything into the output, means it is not rendered like C# expression. C# expressions are executed and result is rendered, but as these blocks are used to manipulate a model, we process the properties of model, we can declare variable और वी कैन सेट अदर लोकल प्रॉपर्टीज. हम अपने डेमो में फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम इस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं. रेजर कोड ब्लॉक कैन यूज HTML टैग डायरेक्टली. कोड ब्लॉक के अंदर हम HTML टैग भी यूज कर सकते हैं विदाउट प्लेसिंग देम इन लिटरल्स, बजाय इसके कि हम उसको डबल कोट्स में स्ट्रिंग बनाकर इस तरीके से यूज करें. एंड रेजर कोड ब्लॉक शुड नॉट यूज इट फॉर बिजनेस लॉजिक, and this business logic goes to controller, and if needed this will be the part of model. It depends on the situation. Comment in razor. रेजर में कमेंट्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? जैसे हम C# में कमेंट यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ भी कमेंट यूज कर लेंगे. अब जैसे रेजर कोड ब्लॉक्स में कैसे यूज करते हैं? यूज द सेम सिंटैक्स एज वी यूज इन C#. देखें कोड ब्लॉक्स हैं और these code blocks generally contains
C sharp statements, or similarly for single line we use these two forward slashes. Similarly for multiple line forward slash steric and steric forward slash, ये पेयर यूज करते हैं, और एनीथिंग दैट इज इनक्लोज बिटवीन दीज इज कंसिडर्ड एज सिंटैक्स. और अगर HTML with other code है, then we use the razor comment block that start with at asterisk and ends at asterisk at. और this is the example of comment with HTML with other code. अभी देखें, this is the example of explicit. जैसे भी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इम्प्लिसिट यूज करेंगे एक्सप्रेशन और कुछ होंगे एक्सप्लिसिट. दिस इज द इम्प्लिसिट एट यूजर नेम. अब देखेंगे क्या एट यूजर नेम से क्या मुराद है. हो सकता है किसी मॉडल का नाम हो या कोई वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है. और सिमिलरली हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग एक्सप्लिसिट रेजर कोड. और ये क्या इसमें हम कर रहे हैं, ये पैरेंथेसिस जैसे बताया, आप इसको यहाँ व्यू कर सकते हैं. ये explicit razor expression start with at followed by a parenthesis या balanced set of parenthesis. यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये एक्सप्लिसिट हमने रेजर कोड एक्सप्रेशन को यूज किया, और दिस इज इम्प्लिसिट. हम यहाँ पैरेंथेसिस को यूज नहीं कर रहे. How does it work? Razor web pages, as described in previous, are HTML pages with two kinds of contents, client content and server code or Razor code. Client contents contains HTML markup, style information such as CSS. अपने previous courses में देखा होगा cascading style sheets. May be some client script such as JavaScript and plain text. These are the client contents in a web page. And Razor code, these consist of C# expression, conditional statements, loops and variable declaration, etc. The next examples और अपनी demonstration में फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं. At enables to intermingle HTML elements with code snippet that perform some kind of work. अब at symbol है, ये HTML के साथ HTML में हम इसको यूज कर लेते हैं, और ये हमें बताता है कि इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो सर्वर साइड कोड है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. एट प्रोवाइड्स ए सिग्नल टू द सर्वर दैट द फॉलोइंग आइटम इज टू बी प्रोसेस्ड एज ए कोड. व्हेन द सर्वर रीड्स द पेज, इट रन्स द रेजर कोड फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रेजर कोड बी एग्जीक्यूटेड before it sends the HTML page to the browser, and after executing the code, a static HTML is sent to the browser, as in case of static websites या static pages. Razor syntax example हम देखें, सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक. अब ये ब्लॉक एक ही स्टेटमेंट पे मुश्तमिल है, और आप ये देख सकते हैं at followed by curly bracket, and here we are declaring a variable total and assigning value 7 and followed by semicolon statement terminator, as in case of C. Similarly, this is another example, and here we are assigning a string to this my message variable. Next is the inline expression. The value of your account is at total. अब देखें, यहाँ we declared total here and we are using total here. This is what we call inline expression या implicit expression. And similarly, this is also used for implicit razor code, razor expression. Multi statement block. This at symbol is followed by curly bracket. Here we are declaring 3 variables, and this block consists of more than one statement, as far as this consists of a single statement. And
all statements are followed by semicolon, and this is again implicit razor expression. Next is view types. How we can pass data from controller to view. Data from the controller action method to a view can be passed in the following ways: view back, view data, temp data, strongly typed model object. Dear student, in the start of our ASP.NET course application demo, we have used view data, and in previous demo we have also used view back. Only temp data is remaining, and in our previous एग्जाम्पल वी आल्सो यूज स्ट्रांगली टाइप्ड मॉडल ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह से व्यू की टाइप्स बनती हैं? लूजली टाइप्ड व्यूज, ये ऐसे व्यू होते हैं जिनको हम जो कंट्रोलर एक्शन मेथड से डाटा तो लेते हैं, लेकिन वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ व्यू बैग, इन द फॉर्म ऑफ व्यू डाटा और इन द फॉर्म ऑफ टेम्प डाटा। तो जब कभी भी हम कंट्रोलर एक्शन मेथड से व्यू को इन तीन की सूरत में डाटा पास करेंगे, देन दैट व्यू बिकम्स लूजली टाइप्ड व्यू, एंड when we pass some view model or model data to a view, then that view becomes strongly typed view. In strongly typed views, a model object means view model is passed from controller action method as a parameter to the view, and that view becomes strongly typed views. And strongly typed views provide compile time error checking as well as IntelliSense support. And similarly, strongly typed views are created by specify the type of model in the view by using add model directive. अब ये add model directive हम यूज कर चुके हैं प्रीवियस अपनी डेमोस्ट्रेशन में। आज हम इसको देखते हैं कि ये इट इज प्रोवाइडेड बाय द रेजर मार्कअप सिंटैक्स। ये रेजर का कीवर्ड है, वो रेजर मार्कअप सिंटैक्स हमें ये कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा है मॉडल, और विद द हेल्प ऑफ at we are using in our views। अब जो भी व्यू at मॉडल से शुरू होगा आप फौरन ही समझ जाएंगे इट इज स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू, कि हम इसको कोई ना कोई मॉडल का ऑब्जेक्ट या व्यू मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं टू प्रोसेस इन द व्यू, टू प्रेजेंट इन द व्यू। स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज में a view that uses the at model expression to specify a type is known as strongly typed view, and the at model expression declares the type of the model object passed to the view from the action method। इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि इसको कौन सा एक्शन मेथड कौन सा मॉडल एक्शन मेथड प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज at model allows to refer to the methods, fields and properties of the view model object through at model। See the difference, here we are using a small case and here we are using upper case मॉडल का। मतलब ये at model जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया इन द स्टार्ट ऑफ अ व्यू, वो हमें क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि उस मॉडल से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, फील्ड्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, हम विद द हेल्प ऑफ दिस एट और ये मॉडल कैपिटल एम या अपर केस एम की सूरत में उनको एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, अभी फिर हम देखेंगे हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट मॉडल पार्टी इनवाइट्स डॉट मॉडल डॉट गेस्ट। अब देखें हमने जो भी लास्ट टाइम अपनी डेमोस्ट्रेशन में एक व्यू क्रिएट किया था, वो आर कमिंग फॉर द पार्टी, तो हमने उस व्यू में वी पास एट मॉडल पार्टी इनवाइट्स डॉट मॉडल्स डॉट गेस्ट। दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन इन द पेज एंड इट सर्व्स टू डिफाइन द मॉडल। देखें इट इज डिफाइनिंग द मॉडल। कौन सा मॉडल? गेस्ट मॉडल। और ये गेस्ट मॉडल किसका हिस्सा है? जाहिर है ये हमारे पास इस नेम स्पेस में पार्टी इनवाइट्स डॉट मॉडल्स की नेम स्पेस में अवेलेबल है। मतलब उस नेम स्पेस से हम इसको यूज करते हैं। द एट साइन इंडिकेट्स दैट द पार्सिंग विल बी डन
through Razor. Next, another important topic is view discovery. What is view discovery? How controllers know exactly which of the view to return for a specific action method. अब आप देखें, अभी हमने एक्शन मेथड इंडेक्स यूज किया और रिटर्न व्यू एम्प्टी पैरेंथेसिस विदाउट एनी आर्गुमेंट हमने कंट्रोलर बेस क्लास का मेथड व्यू कॉल किया कि व्यू मेथड कॉल और वो रिटर्न कर दे व्हाटसोएवर इज जनरेटेड इन व्यू. अब हाउ कंट्रोलर कम्स टू नो व्हाट शुड टू रिटर्न, वही हमने देखना है. तो व्यू डिस्कवरी इज ए प्रोसेस वेयर ASP.NET Core MVC runtime determines which view to use without forcing you to specify. कि कौन सा व्यू यूज करना, वो कैसे डिटरमिन करता है वो अभी हम देख लेते हैं. कि unless a specific view file is specified, the Razor View Engine uses the default convention to locate a view. डिफॉल्ट कन्वेंशन क्या थी, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि all views are stored in views folder with the name of the mod controller folder. क्या मतलब कि व्यूज के फोल्डर में हम फर्दर एक और फोल्डर बनाएंगे by the name of the controller, and that folder will contain all the views associated to that particular view controller. एक कंट्रोलर के साथ बहुत सारे व्यूज एसोसिएटेड होंगे और ये सारे के सारे व्यू जो व्यूज फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे बाय द नेम ऑफ कंट्रोलर या विद द नेम ऑफ कंट्रोलर, और उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंट्रोलर से एसोसिएटेड जितने भी व्यूज होंगे वो सारे के सारे स्टोर होंगे. दिस इज द डिफॉल्ट कन्वेंशन, और विद द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट कन्वेंशन रेजर व्यू इंजन एक व्यू को एग्जीक्यूट करेगा, सेलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा. रेजर अब देखेंगे उसका प्रोसेस है. लुक्स फॉर ए कंट्रोलर स्पेसिफिक व्यू फर्स्ट with the same name as action method with the addition of CS/HTML file extension, as this file type is used by the Razor View Engine. As views are stored by convention in the views folder grouped by the name of the controller they are associated with. अगर वो उसको वहां मिल गया तो it's okay. Then it will look for matching view name in the shared folder, which is location where views that are shared between controllers are stored. First of all, वो जब भी कोई इसने व्यू रिटर्न करना है वो व्यूज के फोल्डर पे जंप करेगा और फिर देखेगा कि कौन से कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड कॉल किया गया है. अब उस एक्शन मेथड के नेम को एज ए व्यू वो यूज करेगा और उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के फोल्डर में ढूंढेगा. अगर वो वहां मिलता है इट्स ओके, अगर नहीं मिलता इट विल जंप ऑन द शेयर्ड फोल्डर और फिर वहां उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा. एज अ शेयर्ड फोल्डर कंटेन्स ऑल द व्यूज शेयर्ड बाय द कंट्रोलर्स. दिस इज द व्यू डिस्कवरी प्रोसेस. उसके अलावा अदर सिचुएशंस भी हो सकती हैं, हम उनको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं व्यू का नाम डायरेक्टली. व्यू डिस्कवरी सर्चेस फॉर ए मैचिंग व्यू फाइल इन नंबर 1 पे वो व्यूज के फोल्डर पे जाएगा. कंट्रोलर नेम, जो कंट्रोलर कॉल कर रहा है एक्शन मेथड को, वो एक्शन मेथड के नाम से उस व्यू को विद द CS/HTML एक्सटेंशन ढूंढने की कोशिश करेगा. अगर वो मिल जाता है इट्स ओके, अदरवाइज फिर वो क्या करेगा, नंबर 2 पे व्यूज के फोल्डर पे जंप करेगा और फिर उसके बाद शेयर्ड फोल्डर में जंप करेगा और यहाँ पे व्यू नेम को ढूंढने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जांपल देखें व्यूज/होम. अब ये व्यूज का फोल्डर बाइट कन्वेंशन हमने क्रिएट किया, ये वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता. उसमें देन भी क्रिएटेड होम फोल्डर फॉर होम कंट्रोलर और फिर उसमें वो ढूंढेगा index.CS/HTML. अगर ये मिलता है तो इट्स ओके, नहीं मिलता तो फिर देखें वो फिर व्यूज के ही फोल्डर पे जंप करेगा. फिर व्यूज के अंदर फर्दर इस होम कंट्रोल से निकल के शेयर्ड कंट्रोलर पे शेयर्ड फोल्डर पे जंप करेगा और शेयर्ड फोल्डर
से वो index.cs फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा। इफ फाउंड देन रेजर व्यू इंजन प्रोसेसेस इट एंड प्रोवाइड्स HTML या प्रोड्यूस HTML रिस्पॉन्स, अदरवाइज एन एरर विल बी जनरेटेड। A view file path can also be provided। अब हम उसको नाम भी दे सकते हैं। पहले हमने कहा था विदाउट स्पेसिफाइंग एनी व्यू, अब उसका दे देते हैं इंस्टेड ऑफ ए व्यू नेम। इन दिस केस हम उसका पूरे का पूरा पाथ, इन दिस केस द CS HTML extension must be specified as a part of the file path. The path should be relative to the application root and can optionally start with / or ~/. For example, return view here देखें हम व्यू को उसका पाथ भी बता रहे हैं, व्यूज फोल्डर पे, फिर होम फोल्डर पे और फिर अबाउट। अब एक्सप्लिसिटली वी आर डिस्क्राइबिंग द नेम ऑफ द व्यू, नेम ऑफ द फाइल। A relative path can also be used to specify views in different directories without the .cs HTML extension। अब relative path भी यूज कर सकते हैं और उसमें देखें यहाँ हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे। दिस इज द की डिफरेंस हियर, वी आर passing extension and in this case we are not passing the extension। Be aware of the following when using the razor syntax या razor को यूज करते हुए आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। Code is added to a page using the @ character। Number 2, you can enclose code blocks in curly braces। Inside a block you need each code statement with a semicolon, and you can use variables to store values। You can enclose literal string values in double quotation marks। You can write code that makes decision and repeat, or you can use loops। You can intermingle code and HTML code in a block। ये अपने कुछ चीजें हैं जो ज़हन में रखनी थी। नेक्स्ट, नो dear student, we will have a demo application, and in our demo application we will try or cover following topics that we have discussed in our today's lecture। Let's start our demo application। This is the shortcut of our previous party invites application। Let's start। I click the shortcut and Visual Studio is loading the project and solution files। Let's first check what we have covered in our previous demonstration। In our previous demonstration, we created a form, guest form, and we are getting input on that form and displaying that input on another view। Now it is starting IIS Express। This is the first page of our web application। Here it is welcoming us, and this is the link to join the party। I clicked it and it is same as in previous application। हम यहाँ क्या करते हैं, कोई नाम हमने इनपुट के तौर पे फीड किया, ये कॉन्टेक्ट, एंड दिस इज एनी डमी email and I submitted it। The result is in front of you, all guests, and here it is displaying the name of guests who applied for the party। Let's add another guest, Wasim Khan, 04536888। This is the contact number and I submitted it। Now it is displaying the other guest।
Now let's see what we have covered in today's lecture. अब हम वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज today we discussed what are strongly typed view, and this at model, this directive is describing us, telling us that this view is strongly typed because this view is based on this model and we are providing the data to this view from the controller. That's why it becomes strongly typed view. This is the directive that tells us that this view will use this model. And here, as we discuss, this model is used to access the properties, functions, attributes or methods of this model. And clearly note the difference. This is starting from upper letter M and this is starting from lower case letter m. This is the difference between here we are declaring a model and here we are accessing that model by using model keyword. And by using this model, it becomes a strongly typed view. Let's see how we are passing it. This is our controller, repository controller. Here you can see we are passing this list of guests to this view. The name of the view is index. इस व्यू को ये गेस्ट लिस्ट पास कर रहे हैं और इस गेस्ट लिस्ट की वजह से ये व्यू जो आपके सामने ये इंडेक्स व्यू नजर आ रहा था और इसकी वेरी फर्स्ट लाइन एट मॉडल से शुरू हो रही है, ये हमें बता रही है कि ये अब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू बन गया और ये टोटली उस पे डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी द एट character, at character, and here you can also see this is at character. Again this is at character. As I told you in Razor syntax, at character is used to transition from HTML to C# code, and here you can see this is the declaration, this is C# code and this is the directive. Similarly, this at is used to create a razor block. ये देखिए ये ब्लॉक बन रहा है, ये उसके साथ करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है और करली ब्रैकेट यहाँ पर आकर खत्म हो रही है. ये दिस इज द रेजर ब्लॉक एंड दिस इज C# स्टेटमेंट. और क्योंकि ये एक ब्लॉक में इनक्लोज हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायरिंग द एट कीवर्ड, एट कैरेक्टर. एंड हियर वी आर यूजिंग एट कैरेक्टर बिकॉज इससे पहले हमने HTML यूज किया. HTML एलिमेंट कौन सा यूज किया? वी यूज्ड पैराग्राफ एलिमेंट, पैराग्राफ टैग ऑफ HTML. और उसके बाद अब HTML से उसने ट्रांजिशन करनी है C# की तरफ, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड एट कीवर्ड. और दिस इज इनलाइन एक्सप्रेशन, दिस इज इनलाइन एक्सप्रेशन या इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन कि वो क्या करेगा, इस एट की मदद से इस गेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा और उसमें जो एक प्रॉपर्टी है, द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज गेस्ट, उसको यहाँ आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करेगा. सर्वर इसको, इस व्यू को, रेजर व्यू इंजन इसको एग्जीक्यूट करेगा और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो इस p टैग के बाद
इसको इवेल्युएट करेगा, वो देखेगा कि इस लिस्ट में कितने गेस्ट हैं, हर गेस्ट को वो यहाँ आउटपुट के तौर पे जनरेट करेगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक इस मॉडल में जो हमने इसको लिस्ट पास की है उसमें ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट गेस्ट अवेलेबल हैं। Let's suppose if there are 10 guests, then this loop will be executed for 10 times। और यहाँ गेस्ट के नाम वो डिस्प्ले करता चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऐट का यूज है। ये अब हम इसको मजीद थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि इसमें हाउ वी कैन डिक्लेयर आर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? वेरिएबल वैसे डिक्लेयर करेंगे क्योंकि वेरिएबल एक ब्लॉक में हम डिक्लेयर करते हैं, तो ब्लॉक ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने कहा एक इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कितने लोग आएंगे, टोटल कितने लोग हैं, टोटल गेस्ट्स। और हमने यहाँ उसको इनिशियलाइज भी कर लिया, 0 से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया विल अटेंड। भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कितने लोग अटेंड करेंगे, उसको भी 0 से हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद एक और हमने वेरिएबल ले लिया विल नॉट अटेंड, उसको भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। और उसके बाद अब आगे हम अपने इस ब्लॉक पर, क्योंकि ये लिख रहा है कि ये गेस्ट का नाम लिख रहा है, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि टोटल गेस्ट कितने हैं। तो हम यहाँ पर वो टोटल गेस्ट इज इक्वल टू टोटल गेस्ट प्लस 1। और उसके बाद हमने क्या पुट किया, सेमीकोलन पुट किया, हम नीचे आ गए। ये हमारी क्या हो गई है, असाइनमेंट स्टेटमेंट सी शार्प की। इस वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू 0 है, उसमें हम 1 का इजाफा कर देंगे और फिर उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि टोटल गेस्ट कितने आ रहे हैं। और इस लूप से निकलने के बाद हम यहाँ पर वो डिस्प्ले करा लेते हैं कि टोटल गेस्ट कितने आ रहे हैं। पी ये पैराग्राफ टैग यूज किया और उस पैराग्राफ टैग में हमने ऐट टोटल गेस्ट, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब ये 2 वेरिएबल अभी हमने यहाँ डिक्लेयर किए लेकिन उनको यूज नहीं किया। अब इस एग्जीक्यूशन के बाद हम इन वेरिएबल्स के बारे में भी देखेंगे, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। It is very simple to use razor syntax. These are C# statements are construct, but these are preceded by at character। या हमने उसी तरीके से ये फैयाज मोहम्मद ये कॉन्टेक्ट पास किया, ये कोई ईमेल एड्रेस पास किया और हमने इसको किया सबमिट। देखिए उसने लिख दिया, वो गेस्ट का नाम लिखा और डिस्प्ले कर दिया 1। अब फिर हम एक और गेस्ट उस लिस्ट में अपना ऐड करते हैं, अशफाक, और ये नंबर ये उसका वो यस, और अब ने उसको क्या किया, सबमिट किया। अब देख सकते हैं, देखें ये हमें क्या बता रहा है कि टोटल गेस्ट कितने, फैयाज, मोहम्मद और अशफाक, और नीचे उसका क्या दिखा रहा है, ये टोटल गेस्ट हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि टोटल तो 2 हैं, कितने लोग पार्टी अटेंड करेंगे और कितने अटेंड नहीं करेंगे। अब हम फिर देखते हैं अपना वो उस सिंटैक्स को किस तरह से, रेजर सिंटैक्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये स्ट्रेट C# की स्टेटमेंट है और ये एक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज की गई है एज पर सिंटैक्स ऑफ रेजर। ये इट इज एंडेड ऑन सेमीकोलन। ये किस पे एंड हो रही है, सेमीकोलन पे। और हम यहाँ पर कोई ऐड सिंबल यूज नहीं कर रहे कि वो ट्रांजिशन होकर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट
क्या करते हैं, अब देखते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। इफ गेस्ट डॉट, अब गेस्ट की प्रॉपर्टी कौन सी, विल अटेंड, उसको देखा जिसमें वो हमने रखा है ट्रू या फॉल्स। विल अटेंड इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या करे, अब देखिए हमने इफ का ब्लॉक बनाया और उसमें हमने लिखा विल अटेंड इज इक्वल टू विल अटेंड +1 कि जी ये अटेंड करेगा, और अगर नहीं अटेंड कर रहा फिर हमने क्या किया, एल्स। एल्स में हमने वो जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, विल नॉट अटेंड, विल नॉट अटेंड इज इक्वल टू विल नॉट अटेंड +1, ये सेमीकोलन। अब हमने उसमें एक का इजाफा किया कि अगर तो ये ट्रू होगा। अब देखिए ये यहाँ पर इस गेस्ट की प्रॉपर्टी और एक वेरिएबल हमने इसी नाम का डिक्लेयर कर लिया। इट्स अप टू यू, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। ये भाई लकीली ये नाम आ गया यहाँ पर। अब हम इनको नीचे डिस्प्ले करा सकते हैं कि टोटल गेस्ट इतने, और उसके बाद हमने कहा, अब फिर भी एक पैराग्राफ हमने यूज किया एट, और यहाँ पे लिखवा लिया विल अटेंड। अब देखिए हम वो ये एक्सप्रेशन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, रेजर एक्सप्रेशन। और उसके बाद फिर हमने पी और यहाँ पे क्या किया, एट विल नॉट अटेंड। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। इफ स्टेटमेंट हम पिछले डेमोस्ट्रेशन में भी यूज की, उससे पहले भी हम एक कंट्रोलर में भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स इज सेम बट सिंटैक्स इज प्रीसीडेड बाय एट कैरेक्टर वेयर रिक्वायर्ड। अगर ट्रांजिशन हो रही है तो फिर तो हम एट यूज कर लेंगे, ट्रांजिशन नहीं हो रही है तो स्टेट चलती चली जाएगी। यहाँ आए और हमने फिर अगेन उसी तरीके से ये हमने एक ऐड किया, और उसके बाद यहाँ हमने कॉन्टेक्ट पास कर दिया, ईमेल एड्रेस कोई भी पास किया एंड सबमिटेड इट। देखें आप देख सकते हैं क्यों बता रहा है ये गेस्ट का नाम है। अब यहाँ ये नहीं पता लग रहा कि ये 1 क्या शो कर रहा है, ये 1 क्या शो कर रहा है और ये 0 क्या शो कर रहा है। अब हम इनके साथ तो कैप्शन ऐड कर लेते हैं। अब वो कैप्शन किस तरह से होगी, वो प्योर टेक्स्ट होगा, वो प्योर टेक्स्ट होगा। अब वो प्योर टेक्स्ट अगर हम यहाँ ऐड करते हैं, से हम कहते हैं इसको टोटल गेस्ट, ये हमने लिखा टोटल गेस्ट। अब आप देखें कि हम इसको स्पेस प्रोवाइड कर दें तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने उसके कलर को चेंज किया कि अब ये उससे डिफरेंट हो गया। अगर हम इसको उसके साथ ही स्पेस नहीं दे रहे तो ये उसको एज ए टेक्स्ट समझेगा, और टेक्स्ट समझेगा तो स्क्रीन पे भी टोटल गेस्ट एट टोटल गेस्ट डिस्प्ले कर देगा। और अगर हम चाहते हैं स्पेस ना दें तो फिर हम इसको, ये देखें ये पैरेंथेसिस यूज किया, मैंने आपको बताया भी था हम पैरेंथेसिस किस लिए, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अब वो ये एक्सप्लिसिट हो गया, अदरवाइज ये इम्प्लिसिट था। अब इट्स अप टू यू, टोटल गेस्ट अगर हम यहाँ दे दें कोलन दे दें और इसको ऐसे भी रहने दें तो फिर भी ठीक है। अब देखें ये कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करेगा। इधर यहाँ हमने लिखवा लिया विल अटेंड, कितनों ने अटेंड करना है वो रिजल्ट इधर आ गया। उसके बाद यहाँ हमने लिखवाया विल नॉट अटेंड, ये कोलन और इसको स्पेस दे दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे प्योर टेक्स्ट को भी यूज कर लिया है। इसके अलावा भी एट कोलन की मदद से भी हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। चूंकि ये पैराग्राफ का हिस्सा बन गया, एलिमेंट HTML एलिमेंट पैराग्राफ का हिस्सा बन गया, इसलिए हमने उससे पहले एट कोलन यूज नहीं किया, जैसे कि हमने पहली डेमोस्ट्रेशन में यूज किया था। वो भी हमें देख लेते हैं। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ आकर फैयाज एंड सिमिलरली ये नंबर एंड ये ईमेल एंड सबमिटेड इट। नो यू कैन सी दिस इज डिस्प्लेइंग गेस्ट
is only 1, total guest में 1 और will attend 1 और will not attend 0। एक ही गेस्ट है और वो अटेंड करेगा, इसका मतलब है और कोई है नहीं जो अटेंड ना करे, उसमें वैल्यू इसलिए वो 0 दिखा रहा है। अब हम फिर क्या करते हैं, एक और हम गेस्ट यहाँ से ऐड कर लेते हैं, खालिद, और ये नंबर ये गेस्ट, और अब हमने क्या किया, सबमिट। अब आप देखें उसने टोटल गेस्ट 2 कर दिए, विल अटेंड को उसने 2 कर दिया, क्यों, हमने यस किया था। अब हम ये करते हैं कि उस जो अटेंड को हम जो यस कर रहे हैं उसको अब नो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम पास कर देते हैं वसीम खान, और उसके बाद ये यस की बजाय हमने यहाँ क्या किया, नो, और इसको सबमिट किया। अब आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज ऑल गेस्ट लिस्ट, ये गेस्ट 1, गेस्ट 2, गेस्ट 3, नीचे उसमें टोटल गेस्ट 3 और विल अटेंड 2 एंड विल नॉट अटेंड 1। और आप देखें हमने कितनी खूबसूरती के साथ रेजर सिंटैक्स को यूज किया और डायनामिक डाटा हमने डिस्प्ले करा लिया रेजर व्यू इंजन की मदद से। अभी हम इसको फर्दर अगर ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं ताकि ये इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वो HTML को यूज करते हुए जैसे ही वो इस लूप से निकलता है, हम यहाँ पर HR का टैग यूज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल यूज करेंगे। अब देखें वो एक लाइन ड्रा कर देगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये यूजर इंटरफेस अट्रैक्टिव हो जाए और यूजर ईज फील करे इसको देखने में, यूज करने में। अभी हमने सिर्फ एक टैग यूज किया HR का, देखें उसका क्या असर पड़ता है। ये हमने एक लिया, फिर हमने उसी तरीके से ये पास किया, यस रहने दिया और उसको यस किया। अब आप देखें एक लाइन यहाँ पर उसने ड्रा कर दी। अब मजीद हम करते हैं एक और उसमें ऐड, ताकि आपको ये बेहतर नजर आ सके। फिर हम इसको चेंज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS और बूटस्ट्रैप। ये वसीम खान ये सबमिट किया। आप देखें वो 2 उसने की और ये लाइन वो नीचे ले आया। अब आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डायनामिक कंटेंट्स जनरेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजर सिंटैक्स, और दैट रेजर सिंटैक्स इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस सम अदर थिंग्स, वो भी हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज, अब आप देखें ये हमारा कंट्रोलर, इस कंट्रोलर को अगर हम खोलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये 2 एक्शन मेथड RSVP को यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस RSVP को दोबारा यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज कर लेंगे, एक्शन वर्ब यूज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ एक्शन वर्ब HTTP पोस्ट यूज किया हुआ है कि अगर इफ वी नीड टू ओवरराइड दिस, तो हम फिर उसको क्या कर लेंगे, HTTP पोस्ट या HTTP गेट की मदद से ओवरराइड कर सकते हैं। अब हम अपने रिपोजिटरी कंट्रोलर को देखते हैं, और इस रिपोजिटरी कंट्रोलर में आप देखें हमने क्या किया कि एक एक्शन मेथड इंडेक्स है और दूसरा एक्शन मेथड है ऐड गेस्ट। ये 2 एक्शन मेथड्स हैं। अब आप देखें कि जब हम वहां से उसको सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो हम इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐड गेस्ट को। अब अगर हम एक्शन सेलेक्टर की मदद से इसका नाम तब्दील कर दें तो ये उसी नाम से यूज होगा। हम उसको करके देख लेते हैं। अब हम इसको कहाँ से इसको भेज रहे हैं, कौन से व्यू से आ रहा है, तो पहले हम अपने उस व्यू को ढूंढ लेते हैं। ये हमारा व्यू है जहां पे हमने ये रखा हुआ है अपना मतलब फंक्शन, ये व्यू है और ये सबमिट बटन है। जब ये सबमिट बटन प्रेस होता है तो ये क्या करता है, ये रिपोजिटरी कंट्रोलर को
जंप करता है, ढूंढता है रेजर व्यू इंजन, और उसके बाद ये ऐड गेस्ट एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। अब हम क्या करते हैं, एक्शन सेलेक्टर की मदद से हम उसका नाम चेंज कर देते हैं अपने एक्शन मेथड का। अब देखें हम कैसे नाम चेंज करेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर, सॉरी, इस कंट्रोलर में ये ऐड गेस्ट है, तो इससे पहले हमने ये एट्रीब्यूट यूज किया एक्शन नेम। अब देखें इंटेलिसेंस से आपको नजर आ रहा है, आप उसे सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर दें और यहाँ पे हम सिर्फ उसका नाम ऐड कर दें, सिर्फ उसका नाम क्या कर दें, ऐड कर दें। जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया कि अब ये ऐड गेस्ट की बजाय इस ऐड से ही कॉल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड गेस्ट पास करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। पहले हम देख लेते हैं क्या एरर जनरेट करता है वो। ज्वाइन के बटन को प्रेस किया, उसी तरह से ये फॉर्म, और यहाँ से हमने वो नाम कॉन्टेक्ट कोई भी पास कर दिया और यहाँ से ईमेल, और हमने सबमिट किया। अब आप देखें व्हाट हैपेंड, वो कह रहा है रिपोजिटरी, कौन सा मेथड का, कौन सा कंट्रोलर, रिपोजिटरी और क्या, ऐड गेस्ट, और नीचे उसने मैसेज कर दिया दिस लोकल होस्ट पेज कांट बी फाउंड, नो वेब पेज वाज फाउंड फॉर द वेब एड्रेस। इस वेब एड्रेस पे कोई उसको पेज नहीं मिल रहा, और HTTP एरर 404, ये भी हमने जो अपने वो देखे थे एक्शन रिजल्ट, उन एक्शन रिजल्ट में ये एरर मेथड भी था कि वो इस तरह से हमें डिस्प्ले कर देगा। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि वी हैव चेंज्ड द नेम ऑफ एक्शन मेथड फ्रॉम ऐड गेस्ट टू गेस्ट। ये देखें, ये हमने ऐड गेस्ट की बजाय इस एक्शन सेलेक्टर नेम की मदद से हमने इसका नाम क्या रख दिया, ऐड रख दिया। अब हम जहां से इसको कॉल कर रहे हैं, अब हम वहां इसको अगर चेंज कर देंगे तो फिर ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अब हम इसको कहां से कॉल कर रहे हैं, वो हम अपने RSVP फॉर्म से। अब यहाँ पे ऐड गेस्ट की बजाय हमें क्या करना होगा, ये ऐड किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देखेंगे वो बड़ी उसके साथ जैसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, दोबारा एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा रिजल्ट को। अब देखिए हमने ज्वाइन का बटन प्रेस किया, उसके बाद यहाँ आ गए, और उसके बाद ये सब कुछ एज इट इज, जैसे एज यूजुअल वी आर सेलेक्टिंग और एंड सबमिटेड इट। नो यू कैन सी हियर, देखें द नेम इट इज डिस्प्लेइंग ऐड एंड देयर इज नो एरर जनरेटेड। अब क्या किया, एक्शन सेलेक्टर की मदद से हमने उसका नाम ऐड गेस्ट की बजाय हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इस तरीके से हम एक्शन सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी एक्शन मेथड को, किसी पब्लिक मेथड को अगर रीयूज करना है फॉर द सर्विस ऑफ अदर मेथड्स, तो हम उसको नो एक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देख लिया वर्ब एट्रीब्यूट हमने यूज किए यहाँ पर, HTTP गेट और पोस्ट इनकमिंग सेशन, हम उसको मजीद देखेंगे कि किस तरीके से वेब APIs में हम इनको यूज कर सकते हैं। अब देखें ना आप अपने इसको, ये रिपोजिटरी कंट्रोलर यहाँ पे जैसे हमने ये यूज किया, सिमिलरली हम वो HTTP वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और वो हमने पहले भी एक यूज किया था, उसको फिर देख लेते हैं कि वो हमने कैसे यूज किया था अपने होम कंट्रोलर में। ये होम कंट्रोलर में आप देखें, ये हम क्या करने लगे, HTTP पोस्ट, ये एक्शन वर्ब है और इसको हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा वी आल्सो डिस्कस्ड व्यू डिस्कवरी। अब व्यू कैसे डिस्कवर होता है, तो व्यू डिस्कवरी को समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इस फोल्डर स्ट्रक्चर पे गौर करना होगा। ये देखें, ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। जब हम प्रोजेक्ट
क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ये कन्वेंशन है। तो कंट्रोलर फोल्डर में कंट्रोलर, मॉडल फोल्डर में मॉडल और व्यूज फोल्डर में क्या होंगे। अब ये देखें फर्दर फोल्डर्स हैं और ये फोल्डर क्या करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर से रिलेटेड व्यूज को या एसोसिएटेड व्यूज को उसमें स्टोर करते हैं। ये देखें ये सारे के सारे 1 2 3 4 1 2 3 4 these 4 views are associated with home controller. Similarly, अगर if we expand repository folder, it contains only single view, the name of that is index। और अगर ये रिपोजिटरी हमारा कंट्रोलर है, अब जब आप देखें, हम सबसे पहले उसको रिपोजिटरी कंट्रोलर को ही देख लेते हैं कि जैसे ही वो सबमिट होगा वो यहाँ देखेगा ऐड पैरामीटर मिल गया, मिलने के बाद वो इस एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। इस एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करते हुए देखिए हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली उसको नाम दे दिया इंडेक्स का, क्योंकि ये इस रिपोजिटरी कंट्रोलर से रिलेटेड है, इसीलिए ये किस में इस रिपोजिटरी फोल्डर में पड़ा हुआ है और उसका नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, ये रिपोजिटरी व्यूज के फोल्डर पे जंप करेगा और व्यूज के फोल्डर में इस कंट्रोलर से रिलेटेड फोल्डर लोकेट करेगा। जब इस कंट्रोलर से रिलेटेड उसको फोल्डर मिल जाएगा तो उसमें वो फिर इंडेक्स को ढूंढकर फिर रेजर व्यू इंजन की मदद से उसको, क्या रेजर व्यू इंजन ही सारा ये काम कर रहा है, तो रेजर व्यू इंजन वो प्रोसेस करके आपको स्टैटिक HTML डिलीवर कर देगा। अब देखें, अब अगर वो यहाँ नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज वो यहाँ नहीं मिल रहा, अब हम क्या करते हैं, तो फिर वो एरर जनरेट कर देगा। पॉसिबिलिटी यही है, यहाँ पे हम गए, इस इंडेक्स को हमने ड्रैग किया और किसका हिस्सा बना दिया, शेड का। देखें 1 or more files will be moved to this folder, मूव कर दें, हमने उसे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं रिपोजिटरी फोल्डर में कुछ भी नहीं और ये इंडेक्स इधर आ गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपने देखना है कि उसी तरह सिमिलरली अगेन बार बार हम इसको करते जा रहे हैं। एक नाम सेलेक्ट किया, यहाँ से फिर कोई नंबर, ईमेल और सबमिट किया। अब देखें, अब भी उसने कोई एरर डिस्प्ले नहीं किया। क्यों नहीं उसने कोई एरर डिस्प्ले किया? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यू डिस्कवरी में वो क्या करता है, पहले उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के फोल्डर में ढूंढता है, लोकेट करता है। अगर वो वहां अवेलेबल है इट्स ओके, अदरवाइज फिर वो जंप करेगा शेयर्ड फोल्डर में, और शेयर्ड फोल्डर में तमाम कंट्रोलर से रिलेटेड या शेयर्ड जितने भी व्यूज होते हैं वो शेयर्ड फोल्डर में। तो अब उसको कहाँ मिल गया, वो शेयर्ड फोल्डर में मिल गया। लेट्स सपोज अगर हम उसे शेयर्ड फोल्डर से निकाल देते हैं, देन व्हाट विल हैपन। अब देखें हम क्या करने लगे, यहाँ आकर व्यूज में एक और टेम्प के नाम का फोल्डर बना लेते हैं। ये ऐड और न्यू फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम हमने क्या रखा, टेम्प फोल्डर किया। अब क्या करते हैं, इस इंडेक्स व्यू को उठाकर इस टेम्प फोल्डर में मूव कर देते हैं। वो जैसे पहले उसने डायलॉग किया, पूछा, हमने कहा जी यस आप मूव कर दें। अब देखें वो इधर से निकला और टेम्प का हिस्सा बन गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब ये क्या रिजल्ट देगा। अब इसे तवज्जो से देखना, अगर ये आप समझ गए तो सारा व्यू डिस्कवरी का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम URL डिस्कवरी, URL या राउटिंग को डिस्कस करेंगे। ये जरूरी है कि आपको ये व्यू डिस्कवरी का प्रोसेस क्लियर हो जाए, ताकि जब आप एप्लीकेशन अपनी लिखने लगें, कोई एरर्स आ रहे हैं तो आप समझ जाएं व्हाट हैपेंड रॉन्ग। ज्वाइन को क्लिक किया, ज्वाइन को क्लिक करके हमने यहाँ पे उसी तरह से ये नाम पास किया, ये दिया,
and any email and submitted. अब देखें ऊपर वो बता रहा रिपोजिटरी में किस पे गया, वो ऐड पे गया। अब ऐड एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट किया तो वो इंडेक्स ढूंढ रहा है। अब यहाँ देखें एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड। देखिए वो इंडेक्स इस ऐड में किसको कॉल कर रहा था, इस इंडेक्स को कॉल कर रहा था, उसने बता दिया वाज नॉट फाउंड, द फॉलोइंग लोकेशंस वर सर्च्ड। पहले उसने किसको सर्च किया, व्यूज के फोल्डर पे, व्यूज के फोल्डर में से वो देखें ये रिपोजिटरी कंट्रोलर का नाम, ये उसने यहाँ पर उस रिपोजिटरी फोल्डर पे जंप किया और फिर उसने इधर रिपोजिटरी फोल्डर में जाकर इंडेक्स को ढूंढने की कोशिश की, उसे यहाँ नहीं मिला। अब उसने क्या किया, अब उसने फिर अगेन व्यूज के फोल्डर से वो किस पे पहुंचा, शेयर्ड फोल्डर पे, और उसने यहाँ भी ढूंढा, उसको यहाँ भी नहीं मिला और उसने एरर जनरेट कर दिया। ये बाकायदा यहाँ पर लिख रहा है द लोकेशन वर सर्च, ये दो लोकेशन सर्च की गई थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस इसको इंडेक्स को उठाकर या तो रिपोजिटरी में रख देते हैं, ये देखें ये रिपोजिटरी का फोल्डर है, या शेयर्ड में रख देते हैं। देखिए हम इसको फिर मूव कर रहे हैं उसमें रिपोजिटरी के फोल्डर में। अब ये देखें इंडेक्स को उठाकर हम रिपोजिटरी के फोल्डर में अगेन वापस मूव कर देते हैं। उसी तरह से डायलॉग वो प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, अगर आप इसको चेक कर दें तो अगली दफा नहीं पूछेगा, नेक्स्ट टाइम। हमने कहा यस, अब ये वापस अपने फोल्डर में रिपोजिटरी में चला गया और अब हम इसको फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। I click the join link and submitted. I am entering data and now submitted it. देखें it is working as usual. So dear student, what we have learnt in today's demonstration. In today's demonstration, we try to understand what are action method, what are action selector, what are action verbs, and the razor syntax, and we also discussed strongly typed views, and in the last we discussed the view discovery process. Dear student, you are again required to practice it yourself and let me know if you are facing any sort of problem. Dear student, this is the summary of our today's lecture. We started from action method and then action selector, action verb, action result, action filter, razor view engine, razor syntax, and view types and discovery. In the end, we created a demo application and described these above topics, concepts in our demo application. Dear student, you are all required to practice it at your site and discuss if you feel something is creating problems for you. I am waiting for your queries. Thank you. Allah Hafiz.